Hello, Assalamu alaikum. I welcome you to my channel. Today I will discuss a very important issue, and the issue is how to score good marks in CSS. I will share some practical tips that will help you get good marks in CSS. CSS aspirants put on a lot of hard work to clear the exam. I believe that if they follow certain principles and certain tips, they can perform better in the exam and they can score good marks and achieve their target. So let's see. First, grammatically correct writing. Writing clean and clear writing, that is, error free writing, is key to success. If you commit grammatical errors or your expression is faulty, you stand no chance of clearing examination. CSS क्लियर करने के लिए नीट एंड क्लीन राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट, और ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर आपकी ग्रामर ठीक। अगर आप ग्रामर की एरर्स करते हैं तो फिर ये आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। अगर आप सीएसएस की तैयारी शुरू करने लगे तो सबसे पहले आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे काम करें, इंग्लिश को इम्प्रूव करें और सही टू द पॉइंट इंग्लिश लिखना सीखें। ये बहुत अहम है। Next step, basic principles of academic writing. A clear understanding of elements of style that are crucial to writing. A very coherent and logical answer to a question is a must. Basic elements like writing good introductory paragraph that follows the principles of paragraph writing, that is topic sentence, developing argument, and a closing paragraph with a concluding sentence, etc. All these things are very important. Responding to the question statement in the first paragraph is vital importance. Writing a good concluding paragraph in every answer is also equally important. तो CSS करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग पे ग्रिप होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, आपने एक रूटीन में पैराग्राफ कैसे लिखना है, और आपने राइटिंग के किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। नेक्स्ट है क्रिटिकल और एनालिटिकल राइटिंग. CSS tests your critical ability. You should be able to analyze the question statements critically. You must understand what the main contention in the statement is. CSS is not about stuffing your answers with facts, information, or quotes. It's about writing critically. You should be able to answer the question properly, covering all the angles in the question. Writing critically means you should respond to the question directly, focusing on the question statement. No definitions, no history, no background, no unnecessary and irrelevant details. Answer just what is asked. Facts and figures should not be given in static form. They should be used to substantiate your argument. तो critical writing या analytical writing का मतलब ये है कि आप जिस टॉपिक पे भी लिखें, जिस इशू पे भी लिखें, आप उसकी सारी एस्पेक्ट्स कवर करें, लेकिन डायरेक्शन आपकी अपनी होनी चाहिए, आर्गुमेंट आपकी अपनी होनी चाहिए। फिगर, फैक्ट्स, कोट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इनको जस्टिफाई नहीं कर पाते तो फिर जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव साबित होते हैं। और फिगर्स स्पेशली ये स्टैटिक फॉर्म में नहीं होने चाहिए। फिगर्स को आप यूज करें आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए, आर्गुमेंट को बिल्ड करने के लिए। मसलन अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी 5.5 है, तो इस तरह से लिखना कि पाकिस्तान जीडीपी इज 5.5, ये प्रॉपर नहीं है। इससे बेहतर यह है कि आप इसको आर्गुमेंट में यूज करें। पाकिस्तान जीडीपी दैट इज 5.5 shows that Pakistan's economy is doing well. और अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, Pakistan's 5.5 GDP shows that its economy is not working well. तो इस तरह से आप फैक्ट्स, फिगर्स को, आर्गुमेंट को डेवलप करने के लिए यूज करें, सिर्फ स्टैटिक फिगर्स मैटर नहीं करते। Responding to the question statement thoroughly. Responding to the question statement in the first sentence or topic sentence is very important. Address the question statement directly, focusing on the pros and cons of statement. Responding to the main contention in the statement is important. What is not asked in the question is not your concern. Don't write anything irrelevant. No history, no background definition unless it is explicitly asked. For example, if you are asked to discuss impact of Muhammad bin Qasim's invasion of Sindh, you should discuss impact only. You are not required to introduce Muhammad bin Qasim or the history of invasion as such. Your answer must not be about the actual war and its events. It should be only the impact of war. So this is what it means. अब होता क्या है कि क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कीवर्ड्स देखते हैं, उसके अंदर जो एंगल होता है स्टेटमेंट के अंदर उसको नहीं देखते, और फिर वो बिला सोचे समझे सारा कुछ जो है वो लिखने की कोशिश करते हैं। अगर आप इररेलेवेंट लिखेंगे तो आपके पास रेलेवेंट लिखने के लिए टाइम नहीं होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को समझें, क्वेश्चन के अंदर जो मेन कंटेंशन है उसको समझें और सिर्फ उसी को रिस्पॉन्ड करें। आपने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन स्टेटमेंट को रिस्पॉन्ड करना है और उसके मुताबिक ही लिखना है। उसके अलावा आप जो भी लिखेंगे वो आपको मार्क्स नहीं देगा, बल्कि वो एक नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है। टाइम मैनेजमेंट इज ऑफ की इम्पोर्टेंस। It's very important to give proper time to all the questions. Give 10 to 15 minutes to reading the question paper and selecting the questions. अब ये बहुत अहम है। ये नहीं हो सकता कि आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है और आप एक दो क्वेश्चंस पढ़ के आप उनको लिखना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप 10 to 15 इवन 20 मिनट्स लें, सारे क्वेश्चंस पढ़ें, क्वेश्चन स्टेटमेंट्स को रिवर्स करके देखें। आप देखें कहीं रिवर्स के सिनेरियो में इनका आंसर क्या बनता है। अक्सर ये होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को क्रिटिकली एनालाइज नहीं करते और वो जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में जो ट्रैप है उसके अंदर वो फंस जाते हैं और वो प्रॉपरली क्वेश्चन स्टेटमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। उससे फिर परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। तो सबसे अहम ये है सारे क्वेश्चंस पढ़ें। उसके बाद फिर आप देखें कि आप कौन से 4 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप उन क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करें और उसके मुताबिक फिर आप उनको लिखना शुरू करें। You may give 5 to 10 minutes more to the first question than rest of the questions to establish your credentials. तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन में इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करें। आप उसको थोड़ा सा ज्यादा डिटेल से कर लें, उसको थोड़ा सा ज्यादा सुकून से कर लें, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आप कहाँ पे खड़े हैं और आप क्या कुछ कर सकते हैं। मेक श्योर दैट यू गिव इक्वल टाइम टू ऑल द क्वेश्चंस। जनरली ये होता है कि स्टूडेंट पहले 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे कर लेते हैं और बाकी 2 क्वेश्चंस को वो प्रॉपर टाइम नहीं देते। खास तौर पे फोर्थ क्वेश्चन जनरली सफर करता है। अगर आप 3 क्वेश्चंस ठीक करते हैं और आपका फोर्थ क्वेश्चन ठीक नहीं है, तो फिर उसमें जो मार्क्स कम होंगे वो आपके पहले 3 क्वेश्चंस में जो आपने मार्क्स गेन किए हैं वो उनको भी इफेक्ट करेंगे और उससे आपका ओवरऑल रिजल्ट इम्पैक्ट होगा। आप बेशक पहले क्वेश्चन को 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दे लें, लेकिन बाकी जितने क्वेश्चंस हैं आप उनको इक्वल टाइम दें। राइटिंग गुड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। तो अब हम बाकी इश्यूज की तरफ आते हैं कि एग्जाम में हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है। तो हेडिंग्स के बारे में क्या ओपिनियन है? हेडिंग्स should be self-explanatory. Self-explanatory here means heading should reflect what the examiner should expect in the paragraph that follows it. Write headings carefully and properly, making sure that they are in the right direction and are justified. Prioritizing and sequencing questions. इस पे तो कोई राय नहीं है कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आपका सेकंड बेस्ट क्वेश्चन आप उसको फोर्थ मार्क नंबर पे ले जाएं, क्योंकि जनरली चूंकि स्टूडेंट्स का फोर्थ क्वेश्चन वीक होता है और अगर आपका फोर्थ क्वेश्चन स्ट्रांग होगा तो वो आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स दे जाएगा। तो ये इस तरह से एक थ्योरी है जो चलती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जैसे आप कंफर्टेबल फील करते हैं आप उसको वैसे ही अटेम्प्ट करें। तो देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। द फर्स्ट क्वेश्चन यू अटेम्प्ट शुड बी योर बेस्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन शुड बी योर सेकंड बेस्ट क्वेश्चन. It's very important to attempt all the questions in a balanced way. You should be able to give proper time to all the questions. Next है introducing 3 to 5 good properly contextualized quotations. Quotations आप introduce करवाएं, लेकिन वो quotations properly contextualized होनी चाहिए. Properly contextualized quotations can make a difference in marks. Make sure your quotations are exact, relevant, and contextualized. If you don't remember the exact quotation, you can paraphrase the quotation. Don't forget to mention the author or the source. अगर आपको author या source याद है तो आप फिर उसको लाजमी तौर पे मेंशन करें। अब क्वेश्चन ये है कि quotations कहाँ से हैं, इसको भी आप प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस रखा है या आपने आईआर रखा है, तो एक तो जनरली आपको बुक्स के अंदर भी quotation मिल जाएंगे। सपोज आपको नहीं मिलते तो आप गुड रीड्स में जाएं, आप लिखें प्लेटो पॉपुलर कोटेशंस, आपको प्लेटो की पॉपुलर कोटेशंस मिल जाएंगी। आप आईआर के अंदर किसी थेरस को डिस्कस कर रहे हैं, आप जो है थेरस का नाम लिखें, आपको उसकी कोटेशंस मिल जाएंगी। आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे हैं, आप लिखें डेरिडा,
साथ रख दे गुड रीड्स, तो गुड रीड्स में उसकी कोटेशन आ जाएंगे। तो वहां से जो 3-4 इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं आप उनको पिक कर लें। बेशक आप रूटीन का स्टफ ही तैयार करें अदरवाइज, लेकिन अगर आप उसके अंदर कोटेशंस ऐड कर देते हैं तो वो आपके क्वेश्चन का पूरा इम्पैक्ट ही चेंज कर देगा। लेकिन फिर CSS जो है वो क्रिटिकल आर्गुमेंट डिमांड करता है। कोटेशंस वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप कोटेशंस नहीं लिखते तो फिर भी आप जो है एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, एक अच्छी आर्गुमेंट डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एनी हाउ अगर आपके पास टाइम है तो आप कोटेशंस पे फोकस कर सकते हैं। एक पेपर के लिए आप 10 to 15 कोटेशंस तैयार कर लें, ना क्रैम करें, उसके मेन पॉइंट्स या इवन एसेंस जो है कोटेशन की वो फोकस कर लें और उसको जो है वो आप बयान कर दें। फनान कहता है कि यू आर रिच बिकॉज यू आर वाइट, यू आर वाइट बिकॉज यू आर रिच। तो आपको ये कोटेशन अगर एग्जैक्टली याद नहीं भी रहती इस तरह की, तो आपको पता है कि इसके अंदर क्या आइडिया डिस्कस हुआ है, तो आप फनान का नाम लेके आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि दैट देयर इज अ डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन बीइंग वाइट एंड बीइंग रिच। तो बात क्लियर हो गई। जो आपका एग्जामिनर होगा उसको पता चल जाएगा कि आपको पता है कि फैनन ने इस बारे में क्या कहा। नेक्स्ट है रेफरिंग टू की ऑथर्स, theorists, बुक्स, जर्नल्स, रिपोर्ट्स एटसेट्रा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। Refer to key authors and theorists in your paper. You should refer to renowned authors and theorists in your paper. If you are attempting a question in international relations, you must refer to some key authors related to the topic. If you are discussing theories, you cannot do so without referring to key theorists and their works. Similarly, if you are writing on Plato, you must quote his works and some established writers on Plato who have critiqued his work. If you are writing on economy, you must refer to World Bank reports, IMF, Moody's, Economic Survey of Pakistan, etc. If you write on Afghanistan, you must quote some important leaders, writers, journals, or reports on the issue. कि अगर इकोनॉमी की बात हो रही है तो आप जो है जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रिपोर्ट्स इशू करते हैं आप उनका नाम ले सकते हैं। पाकिस्तान के बजट की बात हो रही है आप इकोनॉमिक सर्वे की बात कर सकते हैं। पाकिस्तान में पॉवर्टी की बात हो रही है आप इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट दे सकते हैं। आप वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जिक्र कर सकते हैं। अगर ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है आप एमनेस्टी का नाम ले दें, आप ह्यूमन राइट्स कमीशन का नाम ले दें, आप UNHR का नाम ले दें। तो इस तरह करके आप अगर थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें तो आप अपने जनरल नॉलेज से, कॉमन नॉलेज से आप अपनी आर्गूमेंट को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन एक कोशिश जरूर करें कि आप जो चीज़ भी डिस्कस करें वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि मूडीज ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज किया है तो आपने यहाँ वहां से एग्जैक्ट कोई सेंटेंस नहीं पिक करना। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि मूडीज इन इट्स रिसेंट रिपोर्ट हैज क्रिटिसाइज्ड पाकिस्तान's इकोनॉमी suggesting that Pakistan's economy is not moving in the right direction. या इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स का इशू है तो आप उसको बयान कर सकते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल हैज क्रिटिसाइज्ड इंडिया फॉर इट्स अब्यूज ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट है यूजिंग सब्जेक्ट रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, jargon, register. Every subject has its own special vocabulary, terminology, jargon, or what we call register. It's important to use relevant terms in the relevant context. तो इकोनॉमी पे अगर बात कर रहे हैं तो फिर इन्फ्लेशन, डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड पॉलिसी, इस तरह के टर्म्स जो है वो आ जाएंगे। IR कर रहे हैं तो फिर आपको पता है कि कौन सी टर्म्स आएंगे। फिलॉसफी है उसके अंदर क्या आएगी, एम्पीरिसिज्म आएगी, रैशनलिज्म आ जाएगी, पोस्ट मॉडर्निज्म आ जाएगी, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आ जाएगी, इस तरह की चीजें आ जाएंगी। नेक्स्ट है यूजिंग फिगर्स, डेट्स, बुलेट्स, ग्राफ्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, मैप्स जुडिशियसली। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने ये सारी चीजें पेपर में डाल दी। यूज एनी टू ऑफ द अबव मेंशन्ड आइटम्स। Maps are vital if you discuss the geopolitical situation of any country or region. Maps of Pakistan, Kashmir, Palestine and Afghanistan must be on the fingertips of the students. या जिस तरह से अब ये यूक्रेन का इशू है तो यूक्रेन का मैप, यूरोप का मैप, ये आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। एक काम जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं वो आप किसी भी क्वेश्चन के किसी भी आंसर के अंदर आपको पता है कि इसके आंसर के अंदर ये 2-3 मेन इश्यूज हैं, बुलेट्स में वो उसको आप बयान कर सकते हैं कि फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट इश्यूज दैट आई वुड लाइक टू आंसर। उनको आप बुलेट्स में पहले बयान कर दें, उसके बाद जो है वो आप उसको
डिस्कस कर दें। इसी तरह से फ्लो चार्ट बनाना भी कोई मुश्किल काम नहीं। आप कोई ट्राइएंगल बना दें, जैसे अफगानिस्तान है, आप उसकी ट्राइएंगल बना दें, एक तरफ ईरान बना दें, पाकिस्तान बना दें, ठीक है, एक तरफ चाइना बना दें। इस तरह करके आप उसको जो है वो कर सकते हैं। अब ये नहीं है कि आपने कोई बहुत ज्यादा आर्ट वर्क करना है, सिर्फ जो है वो सिंपल लाइंस जो है वो ड्रॉ करें, जिससे एक जनरल इंप्रेशन क्रिएट हो जाए कि आप उस चीज को एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है राइटिंग अ गुड कंक्लूजन। जिस तरह से इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से कंक्लूजन इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जामिनर इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन वो लाजमी पढ़ता है। इंट्रोडक्शन पढ़ के उसको आइडिया हो जाता है कि स्टूडेंट का लेवल क्या है और वो किस तरह से क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करेगा। उसके बाद फिर वो बाकी क्वेश्चन में वो फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेगा हर पैराग्राफ का, और कंक्लूजन में आके वो देखेगा कि आपने अपनी आर्गुमेंट को कहाँ पे खत्म किया है या आपका उस इशू के ऊपर स्टांस क्या है। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन के आंसर को एक प्रॉपर कंक्लूजन के बगैर कभी भी खत्म ना करें। और पेपर प्रेजेंटेशन भी अहम है। आपका हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए, आपके पेपर का इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपका पेपर जो है वो फील गुड फैक्टर दे, तो एग्जामिनर को डेफिनेटली वो अच्छा लगे। आप प्रॉपर इंक यूज करें, प्रॉपर मार्कर यूज करें, आप साइड पे लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं तो लाइंस ड्रॉ करें। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। This dictum is worth gold as far as CSS is concerned. Good presentation means neat, legible handwriting, proper headings, and properly constructed paragraphs. Quotations, references, figures, etc. should be properly highlighted or made prominent using a different ink or underlining important points. तो ये वो चीजें हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। एग्जामिनर को दूर से नजर आ जाए कि आपने यहाँ पे फिगर्स लिखी हैं, कि यहाँ पे आपने रेफरेंस दिया है, और या यहाँ पे आप एक किसी चीज को अंडरलाइन कर रहे हैं, तो उसको ढूंढना ना पड़े कुछ भी। तो इस तरह से आप अगर ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली उससे आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी और आपका रिजल्ट भी अच्छा है। और सबसे इम्पोर्टेंट फिर, नेवर लेट द एग्जामिनर फील दैट यू गॉट टायर्ड ड्यूरिंग द एग्जाम। कीप योर टेम्पो सेम and your answers must flow smoothly from one question to the other. और ख़ास तौर पे जब आप लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो वो ऐसे ना लगे कि आप उसको बिल्कुल खींच के करें। बट नॉट लीस्ट दैट इज यूजिंग कॉमन सेंस। यूज योर कॉमन सेंस इन वट एवर यू डू इन द एग्जाम। ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बी डिसाइसिव। अब मैंने जो इतनी सारी बातें की हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इन सारी बातों को फॉलो करना, या जो मैंने इतनी सारी आइटम्स बताई हैं आपने वो सारी आइटम्स जो है वो पेपर्स के अंदर डालनी। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपने हर चीज को बहुत क्रिटिकली लेना है। आपने किसी भी चीज को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, और कभी भी किसी भी एडवाइस को आप ब्लाइंडली फॉलो ना करें। आप जरूर देखें कि ये चीज आपको सूट कर रही है या नहीं कर रही। सीएसएस में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें एडवाइस बहुत ज्यादा है, उसमें एडवाइस को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए फिर मैंने जितनी भी बातें की हैं इनको आप क्रिटिकली इवेल्युएट करें और देखें कि ये किस हद तक आपको सूट करती है। जो चीज़ सूट करती है उसको आप एक्सेप्ट करें, और जो चीज़ आपको सूट नहीं करती उसको आप इग्नोर करें। तो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बी डिसाइसिव। दिस इज द की। गुड लक। थैंक यू।